further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making
We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. न मजदूरों के लिए है, न युवाओं के लिए है, न रोज़गार के लिए है, न व्यापारियों के लिए है, न आदिवासियों के लिए है, न दलितों के लिए है, न अल्पसंख्यक के लिए है, यहाँ तक के उच्च वर्ग के लोगों के लिए भी सहानुभूति पूर्वक बजट नहीं है। ये दिशाहीन है और देश की दशा जिस तरीके से चल रही है वो भी जो है जीडीपी ये दावा कर रहा है कि सुधरेगी। हमारा ये मानना है कि जीडीपी की हालत और बुरी होगी और गर्त में देश जाएगा। बेहतर है कि अच्छे से अच्छा देश बजट पेश किया जाता। इस बजट से देश के लोगों में निराशा और उदासीनता है। आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी बात कही तो वो ये कह रहे थे कि हमारे देश की स्थिति आज हम 5वें नंबर के देश बन गए हैं आर्थिक दृष्टि से। उसका बजट इतना लचर ये समस्या पर है। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान के लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा रोज़गार देंगे गरीब नौजवान को, रोज़गार कुछ नहीं। इन्होंने कहा गांव का विकास करें, गांव के लिए एक्स्ट्रा बजट नहीं। इन्होंने कहा मैं सबको स्वास्थ्य दूंगा, उसके लिए कोई बजट नहीं। इन्होंने कहा कि मैंने मिडिल क्लास को फ़ायदा दूंगा, उसमें मिडिल क्लास के व्यापारी लिए कुछ भी नहीं दिया। कुल मिला के इस बजट में न दशा है न दिशा है। ये बजट दिशाहीन बजट है और जिस प्रकार की बड़ी बड़ी डींगे मोदी सरकार मान रही थी उसको लेकर के ये बजट जनता के साथ धोखा है। आप ये देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इनसे 3 मांगें की थी। एक मांग तो उन्होंने ये की थी कि जिस प्रकार हमारे राजस्थान में 10 लाख का चिरंजीवी योजना है वो आप पूरे देश में लागू करो। इतनी अच्छी योजना लागू होती तो क्या बिगड़ता है इनका। एक ERCP जो नहर योजना है तो उसके लिए बजट देते ही इन्होंने नहीं दिया। इसी प्रकार से OPS ओल्ड पेंशन स्कीम वो पूरे देश में लागू करने की बात की उन्होंने कुछ नहीं की। न किसान के हित में, न व्यापारी के हित में, न नौजवान के हित में, न अल्पसंख्यक के हित में, न महिला के हित में और न ही ये सरकारी कर्मचारी के हित में। इस बजट में केवल औपचारिकता है। ऐसा थर्ड क्लास बजट आज़ादी के बाद कभी नहीं आया। बजट जो पेश करा हुआ है उसमें हम ये मान रहे थे कि चूंकि ये लास्ट इनका चुनावी बजट है तो इसमें तो कम से कम आम जनता को और पब्लिक को ये बहुत राहत देंगे। भले वो छल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बार को तो घोषणा करके कम से कम लुभाएंगे तो सही। लेकिन वैसी भी कोई घोषणा नहीं हुई कि कोई युवाओं के लिए कोई हुई। देश की आबादी की 50% आबादी आज युवा है, 25 साल की उम्र से कम है। तो यानी देश किस तरफ पूरा युवा देश है। ऐसे में युवाओं के लिए तो विशेष तरह की योजनाएं होनी चाहिए जो ऐसी कोई भी इसमें नदारत नहीं घोषणा में। दूसरा, महिलाओं के लिए मंत्री खुद महिला है और उनको महिलाओं के लिए विशेष तरह से कुछ घोषणा करनी चाहिए थी। आज महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का इतना योगदान हो रहा है तो सिर्फ एक 5 लाख को 7 लाख इसलिए किया गया कि आज 2014 में जो इसने घोषणा करी थी इन्होंने
उसके बाद से टैक्स स्लैब में कोई भी बढ़ावा नहीं हुआ था। तो आज तो ये इन पे दबाव था कि कैसे न कैसे करके कुछ तो राहत देते, नहीं तो उधम हो जाता। तो कहने का मतलब है चुनावी घोषणा, चुनावी बजट था, तो इतना कोई ऐसा विशेष नहीं था। रही बात टीवी वी सस्ता करना, ये कोई वो नहीं। मेन बात है गैस सिलेंडर आपका कहाँ गया, महंगाई की जो चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये कहाँ इनको सस्ता करने में कहाँ जा रहा है। तो यानी कॉरपोरेट को इनको सेट रखने में और आम पब्लिक को सेट रखने का ये बजट था, जिसमें यह है कि एक 7 लाख करके पोसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं था। मेन जो फ़ायदा देना था, पेट्रोल आज इतना सस्ता होने के बावजूद इन्होंने पेट्रोल में राहत सीधी नहीं दी, तो ये एक निराशाजनक बात है। आम जो रसोई में जो सस्ता होना चाहिए था, रसोई में जो महंगाई बढ़ रही है, एक सिलेंडर विलेंडर, वो नहीं हो रही। 80 करोड़ की जनसंख्या जो भारत की है, 80 करोड़ की जनसंख्या को ये जो आहार जो मुफ्त देने का वो है, और यानी जो कॉरपोरेट्स, कुछ चंद कॉरपोरेट्स हैं, यानी कुछ % जो पॉपुलेशन है, उनके कारण देश जो उन्नति कर रहा है उसको ये बता रहे हैं कि आगे देश उन्नति कर रहा है। लेकिन 80 करोड़ की जनसंख्या तो आपकी गरीबी है, उनके लिए इन्होंने क्या किया। तो कहने का मतलब है चुनावी बजट से ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है। देखिए, जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का ध्यान रखा गया है, कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के परिवार है उनका ध्यान रखा गया है, आदिवासी लोगों का ध्यान रखा गया है। तमाम जितनी भी चीज़ें, इनका सबका ध्यान रखकर ये बजट का पेश किया गया। आप देखें, इसमें जो छात्र हैं उनको पढ़ने के लिए जो बजट है वो उसमें ध्यान रखा गया है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट के लगभग 30 लाख जो है युवा, उनके लिए इसमें ध्यान रखा गया है। और जो 5 लाख पहले एक जो टैक्स की जो तय थी कि 5 लाख के ऊपर में जो है टैक्स लगेगा, उसको 7 लाख बढ़ाकर किया गया एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। ये एक जनहित का चीज़ है। उसके अलावा आप देखें कि जो महिलाएं हैं उनको 2 वर्ष तक 7%, 2 लाख में 7% का जो महिला सम्मान राशि की तरह एक योजना की गई, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ठीक होगी। और साथ ही साथ आप देखिए, आदिवासी जो स्कूल है, आदिवासी जो लोग हैं, उनको भी साधने का काम किया। 15 लाख स्कूलों को खोलने की उनमें घोषणा की गई। साथ ही साथ आप देखें कि युवाओं को स्किल इंडिया डेवलपमेंट जो योजना है, उसके तहत लगभग लाखों युवाओं को उसमें साधने का काम किया। गरीब जो लोग हैं उनमें पीएम जो आवास है, उस आवास में लगभग 80,000 करोड़ का बजट उसमें तय किया गया। कहीं ना कहीं गरीबों को उसमें साधने का काम किया, जो पहले से पूर्व से लगभग 69% जो है वो अतिरिक्त फंड इसमें तय किया गया। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने जो बजट जो तय किया गया, ये अंत्य तल तक पहुंचकर कोई गरीब व्यक्ति हो उसको भी उसका लाभ मिल सके, ये इसमें तय किया गया है। तो मेरा तो यही मानना है, इससे कहीं ना कहीं तमाम जितने भी गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के परिवार से लेकर जो अमीर, सभी लोगों को इसका फायदा होगा। आज इसी को ध्यान में रखते जो अच्छा बजट पेश किया गया।